Hello, my beautiful souls. Welcome or welcome back. I hope you all doing great and आप जहाँ पे भी हो, I hope you are into your healing journeys and I am sending you so much of love from my side and today's topic is all about will you get success in your career. So this reading is all about your career information जो भी spirit हमें देना चाहेंगे and if you have any doubts queries related to your career तो वो भी इसमें हम cover करने की कोशिश करेंगे. So for pile selection we have 3 piles, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. So जो भी आपको resonate कर रही है you can select that pile. And before diving into the reading I want to tell you that कि ये भी one of you my beautiful souls ने suggest किया है topic and I feel so grateful to telling you all that जिसने भी ये topic suggest किया and you can also tell me any suggested topic in comment section as well. So let's quickly dive into your reading. Pile number 1, if you chose this picture then this is your reading. Let's quickly dive into in your cards. Pile number 1, career. Okay, pile number 1, career spirit. Thank you so much. Pile number 1, career. What is the information you really need, you want to reveal and क्या उन्हें अभी जानने की ज़रूरत है. Okay, that's pretty much enough. ये काफ़ी है but that's totally fine. Okay. So we have the Queen of Swords. Okay, I feel that you maybe are somebody जिनकी career life काफ़ी struggling रही है. You are into some kind of career. आप ऐसे career में हो सकते हो या आपने अपनी life में ऐसे अपने career में phases देखे हैं जहाँ पे you have to deal with very difficult things. You deal with like very आपको बहुत सारी battles लड़नी पड़ी है. For example, if you are in your इफ़ यू आर अ स्टूडेंट सो आप ऐसे कोई सब्जेक्ट्स में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद थे. फॉर एग्जांपल मैथ देन साइंस फिज़िक्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद थी बट स्टिल यू स्कोर्ड सो वेल. और हो सकता है इन योर करियर ऑल्सो यू नो आपने बहुत सारे like not your cup of tea kind of एम्प्लॉयज़ को के साथ डील किया है, कॉपरेट किया है. तो you literally experience so much of difficulties in your life and I don't see कि बहुत ज़्यादा आपको supportive लोग मिले होंगे. even I feel अगर आप कोई career आपको पसंद है तो I don't feel if your even parents are supporting for some of you. ऐसा भी हो सकता है आपको अपनी जर्नी में अकेले ही चलना पड़ा है. लाइक यू कैन सी इन द स्काई ओनली वन बर्ड इज़ फ्लाइंग सो दैट्स यू. आप अब एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत इंडिपेंडेंट है जो लाइक अ बॉस लेडी और अ बॉस काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है और अ वेरी इंडिपेंडेंट और वेरी bold personality. You don't your work speaks more than your personality. I feel that आपकी personality के traits are very bold कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सनालिटी ही स्पीक करती है एंड यू आर अ मास्टर ऑफ योर वर्क. आई डोंट सी दैट कि आप कोई ऐसे पर्सन हो जो लाइक जो बहुत बेसिक काम कर रहे हो. यू आर लिटरली सर्विंग सो ग्रेट. यू आर सर्विंग लाइक अ मास्टर. यू डोंट इवन नो द वर्थ ऑफ योर्स. आई मीन फॉर सम ऑफ यू आफ्टर यू बिन into a big journey of yours तो हो सकता है अब आप अपनी वर्थ को जानने पहचानना शुरू कर दिया हो बट you literally deserve something else and time with time you are getting that clarity. like first card of the all the cards आपकी current energy को बताता है and you got the Queen of Swords like a queen. so it really shows like you are the queen. you are not somebody जो despite gender of course you are a king or queen. like you can achieve whatever you want to और आपकी journey is not easy I know but एक मैंने कोट पढ़ा था कि अल्लाह भी अपने उन्हीं बंदों पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी डालता है जो उसको बियर करने की हिम्मत रखे. सो यू आर वन ऑफ देयर सोल्जर्स राइट. सो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल आई मस्ट से. और आपने काफ़ी अपनी लाइफ में लाइक इफ़ यू आर फॉर सम ऑफ यू मे बी अ हाउस वाइफ जिसने आफ्टर मैरिज यू लिटरली लाइक you succeed in your career. like for some of you are a teachers, for some of you are a very I mean there is no such like specification in this because it's a journal reading but जो channel मुझे feel हो रहा था I told you.
आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, आप बहुत सारे अपने लाइफ में चेंजेस, आपने बहुत सारी स्ट्रगल देखी, एज आई मेंशनड यू बिफोर. लेट्स dig into something else also. Okay, yes, I also feel like कि I mentioned you that कि आपने अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्टी फेस देखी where people are not supporting you much. I don't feel even, हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू आपकी फैमिली ही बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजरी हो सकता है आपकी फैमिली ने ही बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी हो. एंड आई फील विद द फाइव, this card is very lonely. This card is like a poverty also, like below average for some of you. Maybe you are something that like you are not, so you were, or maybe you are still uh, not, you want to achieve something, your आपके dreams बड़े हैं, but still you are not able to achieve them. I feel for some of you, but I can strongly interpret कि आप अपने उन प्रॉब्लम्स में भी अगर आप फंसे हुए हो या आप कॉन्टिन्यूसली जा रहे हो, तो आप उससे रखने की क्षमता रखते हो. यूनिवर्स कह रहे जो भी आप अपने करियर में भी, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आर लिटरली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोच रहे हो, आप ऐसा कुछ सोच रहे हो जो इट्स अबाउट एग्जाम्स, इट्स अबाउट योर करियर के रिलेटेड चीज़ या प्रोफेशन के रिलेटेड चीज़. तो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी आएगी फॉर श्योर. एंड बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो. यूनिवर्स आपको पहले ही बोल चुके हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो. आपकी जर्नी में डिफ़िकल्टीज आनी है फॉर श्योर, बट इट डजेंट मीन कि आप रुकने वाले पर्सन हो. आप बहुत बड़े आप बहुत लंबे रेस के घोड़े हो, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं. We have oh my god, can you see that? If you know a little bit of tarot, you know कि 6 of wands कितना ब्यूटीफुल कार्ड है. इट्स अ सिंपल आंसर. अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप एक्सपीरियंस करें बहुत डिफिकल्ट हार्डशिप्स या कुछ भी बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस करो, उसका रिजल्ट विल बी वेरी 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 फ्रूटफुल, वेरी फ्रूटफुल. इवन आई डोंट फील कि यू कैन इवन सी कि दिस इज 6 of wands, दिस एंड दिस शी इज क्वीन ऑफ swords. तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से कि आई मीन आपको जो फ्यूचर में भी रिजल्ट मिलने वाला है सून इन योर लाइफ, आप पास होने वाले हो. आप जो भी सोच रहे हो आपको, आप यू गोना सक्सीड इन दैट फॉर श्योर. यू आर गेटिंग, आई फील आपको आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी एंड ऑनेस्टली पाइल नंबर 1, लाइक आपकी रीडिंग में मैं 2 बार पॉजेस ले चुकी हूँ. एक बार कॉल आ गया था एंड सेकेंड टाइम कोई बाहर आ गया था. सो आई फील कि आपकी येस डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, बट आई कैन सी स्ट्रांगली कि आप जो फ्यूचर में अभी बहुत सून आप एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ को एक्सपीरियंस करने वाले हो, एक प्रमोशन, एक क्विक शिफ्ट को, लेवलअपमेंट को फील एक्सपीरियंस करने वाले हो. बट यूनिवर्स इज स्टिल टेलिंग यू दैट this is very small success that you are getting. You are not getting something very big, like वो आपको लगेगा which is extremely big, but still I am telling you, universe is telling you कि वो भी कोई बहुत बड़ी नहीं है. universe is massive और आप उससे भी बड़ा, आपके भाग्य में उससे भी बड़ा है. so keep going, keep be motivated, and universe is saying कि trust करो थोड़ा सा और. लुक एट दिस, आप पीछे के भाग्य से, पिछले भाग्य से बहुत सारी चीज़ें लाए हो. एंड व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, यू कैन सी 6 नंबर विच रियली शोज अबाउट वीनस, विच रियली शोज अबाउट लाइक की लविंग योर सेल्फ, विच शोज लाइक की स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, स्टार्ट कीप गोइंग इन योर फॉलो योर ड्रीम्स. अपनी जर्नी में रहें एंड यू विल सी डेफिनेटली कि आपको, आप जब अपनी जर्नी पे जाओगे ना, आप अपने मार्ग पे जब जाओगे, यू विल सी कि कैसे आपको आपके लोग मिल रहे हैं. यू कैन सी हेयर विद द 5 of Pentacles, जब आप कोई और करियर, इफ़ यू आर मेंट टू बी अ आर्टिस्ट, और अगर आप आर्टिस्ट नहीं बन रहे हो, आप इंजीनियर बन रहे हो, तो आपको डेफिनेटली यही 5 of Cups की 5 of Pentacles की एनर्जी फील करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट थिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू. बट वेन यू अलाइन विद योर ट्रूएस्ट सेल्फ, और अगर आपको अभी पता भी नहीं है, सून यूनिवर्स विल टेल यू. अगर आप अपने साथ कनेक्शन बनाएंगे, जब व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ बाय कनेक्टिंग विद, अगर आपकी लाइफ में कोई लोग नहीं है, इट्स टोटली फाइन, यू कैन कनेक्ट विद योरसेल्फ, यू कैन वाइब विद योरसेल्फ, डू मेडिटेशंस, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, जर्नलिंग कीजिए. आपको अपने आप को समझना पड़ेगा. हाउ लाइक अभी हम कलयुग में है, सो इट्स अ वेरी, बट अगर हम नॉर्मली देखें, दिस इज़ अ वेरी लाइक सेंसलेस चीज़ कि हमें हमारे बारे में ही नहीं पता. लाइक वी आर द ओनर ऑफ आवर सेल्फ, और हमें अपने बारे में ही नहीं पता. सो हमें अपने बारे में जानना पड़ेगा. इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ नॉट लाइक, आई फील दिस इज़ नॉट इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारा कुछ भी नहीं है कि हमें करना ही करना, कर्तव्य है, बट ये हमें
ये इट्स अ बेसिक ट्रेट कि हमें अपने बारे में जानना, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है, हमें क्या पसंद है, एवरीथिंग। नहीं पता, इट्स टोटली फाइन, बट हम लोग अपने बारे में जानने की क्रियोसिटी, अपने बारे में जानने की क्षमता तो रख सकते हैं ना। एंड आई कैन सी स्ट्रांगली आप अभी सून, अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग some kind of increment from somewhere, growth from somewhere, you will definitely get that। अगर आप कुछ भी करियर रिलेटेड रिस्क ले रखा है अपने करियर रिलेटेड, अगर आप कुछ स्टार्ट करने का, आप एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर आप कोई ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी करियर में, you are getting that। for some of you it's social media growth also, आप फेम आ रहा है आपको, you know, like you are achieving something, you are getting something, और you are becoming something जो लोग जिसको देख के एडमायर करेंगे, लोग जिसको देख के समझेंगे कि ओ माई गॉड हाउ दिस पर्सन कैन एबल टू डू दैट, समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू ट्रस्ट दैट। बट 6 of Wands का एक ही चीज़ है कि दिस पर्सन ट्रस्ट अ लॉट इन देम, कि हाँ यस आई नो कि दुनिया दुनिया सब वही चीज़ कर रही है, दुनिया सारे लोग लाइक फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन सब कर रहे हैं, बट समथिंग इज इन मी विच मेक्स मी डिफरेंट, और वो मेरे कंटेंट को डिफरेंट बनाता है। दैट्स समथिंग लाइक देयर आर मल्टीपल एक्टर्स बट नोबडी इज लाइक SRK, नोबडी इज लाइक यू नो I believe Ranveer Kapoor for me. My personal point of view, I'm sorry, but for Shah Rukh Khan is like a little bit of universal, so you can feel the energy ki nobody is like them because he's too much like uh, believes in himself, so aapko bhi apne andar that belief लाना ही पड़ेगा। एंड आई फील व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर ब्यूटी, व्हेन यू एक्सेप्टिंग योर फॉर सम ऑफ यू, आप शायद अपने आपका करियर आप अपने फिटनेस रिलेटेड भी बना सकते हो, या इन्फ्लुएंसर, या समथिंग लाइक मोटिवेशनल टीचिंग, तो वो भी like you need to understand, you need to trust yourself a lot, you need to shower some love on yourself। यूनिवर्स इज टेलिंग यू, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 5 of Cups पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, विच इज़ नॉट राइट। एंड एम्प्रेस, ओ माई गॉड, like I feel you need to connect with your feminine side of yours, and feminine is not something which act a lot, which take actions a lot despite gender। हम सब में शिव शक्ति है, राइट? सो मैं उस शक्ति की बात कर रही हूँ जो सब में है। और शक्ति कौन होती है? जो अट्रैक्ट करती है। शी डज नॉट टेक मच एक्शंस, वो एक्शन लेती है बट वो अपने अंदर इतना बिलीव करती है, शी बिलीव्स कि शी इज़ अ गॉडेस, शी कैन अट्रैक्ट वट एवर she can, or nothing is like impossible for her, everything is in her destiny, and definitely वो आपके destiny में भी है, pile number 1, and you need to accept that, you need to accept कि मेरा भाग्य बहुत बड़ा है, you need to accept that you are divinely blessed, you need to accept that you are something beyond जो दुनिया अभी even you don't know, your present version does not know even। and for some of you आपका कोई ब्यूटी रिलेटेड भी कंटेंट हो सकता है, आई एम चैनलिंग दैट ऑल्सो, ब्यूटी रिलेटेड, ब्यूटी फेमिनिटी के रिलेटेड लाइक ड्रेसिंग, वीनस के करियर बहुत हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। एंड एम्प्रेस रियली शोज मी कि द मोर यू कनेक्ट विद योर मदर, द मोर यू कनेक्ट विद योर elder like grandmother, granddaughter for some of you also, but mother, sister, like you can connect with them, or even with your wife, girlfriends, best friends, like female in your life, you will feel ki you are growing। I feel there is some kind of nakshatra placements in yours जो आपको grow करने में help करी है वहाँ पे। and with the empress I can also feel कि the more you connect with your heart chakra, यहाँ पे heart chakra की energy भी बहुत strong है, heart chakra के साथ connect करोगे you will definitely feel the energized feeling of that कि you will start getting your ideas, you know, like heart chakra is a center point जहाँ पे हम लोग हमारे जो नीचे के चक्रास हैं, that root chakra, sacral chakra, and I think solar plexus chakra is a muscular chakras, and that throat chakra, third eye chakra and crown chakra is a femininity ka chakra, feminine chakras, you know, shakti ke chakras। so heart chakra is the balance of both शिव एंड शक्ति। सो वही आपके लिए आ रहा है कि यू हैव टू बी बैलेंस। आई थिंक यू आर अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, यू कैन टेक एक्शंस, बट नाउ यू नीड टू बिलीव कि आई एम अ गॉडेस, आई एम अ पर्सन, आई हैव दैट, मेरे अंदर वो एनर्जी है, शक्ति की एनर्जी भी है, डिस्पाइट एनी जेंडर वो शक्ति मैं अटेन करता हूँ और करती हूँ जो मेरे को अट्रैक्ट कर सकती है। द मोर यू बिलीव इन योर सेल्फ, द मोर यू बिलीव इन योर ओन क्रिएशन, माई लव, I don't know what to say। and for some of you, if you are a mother, you can connect with your children also, that will be very beneficial for you। also start अपने बुजुर्गों की प्लीज सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए।
I definitely say it's a Saturn year also, and Saturn is all about seva. It's all about serving. It's all about helping others. So start doing that also. क्योंकि like Queen of Swords से भी मुझे बहुत Saturnian energy आ रही है, which you can also um, do kind of a remedy a bit. Okay, we have a Four of Swords. Four of Swords again यहाँ पे ना मुझे जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, I always reminds me of Six of Cups. It have a same like kind of a image, right? So I always feel कि the more you do meditations, the more you connect with your inner consciousness, the more you get your ideas, the more you get your information, the more you get focus. अगर आपको focus में भी problem आ रही है, अगर आपको focus लगने में भी problem आ रही है, यूनिवर्स सीधा कह रहे हैं meditation करना शुरू कर दो, अपनी ओवर थिंकिंग से निकलो. और yes, I know ओवर थिंकिंग एक दिन में नहीं होती है, but the point is the more you connect with, कोशिश करोगे, you know like एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करनी पड़ती है. सो कब आप वो स्टेप ले रहे हो, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए. अगेन आई फील दैट आई फील नंबर 6 माइट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आई हैव दैट स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि आप एक ऐसी डेस्टिनी को होल्ड करते हो, पाइल नंबर 1, कि जो इस जन्म में एक्शन नहीं लेने आए. यू आर आप यू नो लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो चीज़ हम पीछे से लेके आए हैं, यूनिवर्स कोशिश करेंगे वो उसके उल्टा आपको संपूर्ण करने की. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ वेरी मैस्कुलर सोल, सो masculine despite any gender, you are a very action oriented, bossy, masculine personality, action oriented personality. So universe will try कि इस जन्म में आप अपनी वो फेमिनिटी में अट्रैक्ट करो, अपनी वो फेमिनिन साइड को एक्सप्लोर करो, एंड अपनी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट और ऑफ अट्रैक्शन को भी कनेक्ट करो. एंड आई फील दैट इस जन्म में आप वही कर रहे हो. एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी अ वेरी गॉडेस, लाइक इसका ऑपोजिट भी लोगों के लिए होता है कि कोई बाय बर्थ बहुत ज़्यादा फेमिनिन बन के आया, तो इस जन्म में वो सिखा रहे कि अपनी वो मैस्कुलर साइड को भी एक्सप्लोर करो, राइट? सो यूनिवर्स हमें संपूर्ण बनाना चाहते हैं. सो आई फील इस जन्म में आप, आई नो यू आर अ वेरी यू आर अ गो गेटर, अचीवर काइंड ऑफ अ पर्सन, जो एक्शन अपने एक्शन से कुछ भी कर सकती है, अपने माइंड सेट से कुछ भी कर सकती है. बट समटाइम्स यू नीड टू लाइक बिलीव इन योर ऑरा, बिलीव इन योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अपने आप पे एफर्मेशंस बहुत वर्क करेगी. स्टार्ट एफर्मेटिंग, I swear, start affirmating. That will really works a lot on you. Then trust the universe. Trust and affirmation really helps you. And आपकी भाग्य में है growth. This is the destiny. आप इस लाइफ टाइम में अपने करियर में ग्रो करने आए हो बहुत ज़्यादा. And for some of you, after marriage and after children's, for some people, some women's will be grow. कुछ आप ऐसा करोगे जो after marriage, after like a child birth होगा. Or for some of you, after a divorce, for some of you it's very like situational or like very specific for some of you. but ऐसा नहीं है तो आप एक एक strong mindset के साथ चीज़ को करने वाले हो. I can see that. Okay, I'm constantly shuffling और मैं इसको बोलती जा रही हूँ. Let's see some more cards. Pile number 1's career. Pile number 1's career. Okay, pile number 1's career. Thank you, spirit. Okay, so we have divine source. I know, I told you, आपके पास सारी sources है, आपके पास सब कुछ है, आप संपूर्ण हो, आपके पास सब कुछ है. यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे रखा है इस वक्त. आप जिस भी सिचुएशन में हो, whether it's easy or hard, ये आपके माइंड में है. बट यूनिवर्स कह रहे जब आप अपनी वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एनर्जी से थोड़ा सा काम डाउन होगे, रिलैक्स होगे, यू विल सी कि मेरे आसपास सॉल्यूशंस भी है. एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स इनबिल्ट सॉल्यूशन. हर प्रॉब्लम अपना समाधान लेके आती है, राइट? सो वही है कि आपके पास सारे वो सोर्सेज हैं अभी, बस आपको थोड़ा सा शांत और थोड़ा सा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, विच आई कैन सी स्ट्रांगली. यूनिवर्स हैव अ ब्यूटिफुल प्लान फॉर यू, एंड आप यूनिवर्स पे थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे तो यू विल सी कि यूनिवर्स आपको खुद स्ट्रेंथ देंगे, यूनिवर्स आपको, परमात्मा आपको खुद स्ट्रेंथ देंगे, परमात्मा आपको खुद शक्ति देंगे टू वर्क ऑन योर जर्नी. So don't worry. And limitless, you have limitless potential. I told you, you can up soon you will achieve something which seems so big for you. You feel so grateful, you feel so like huge, but I feel universe बोल रहे वो उसका just a drop of ocean है. So आपके लिए वो ब्रह्मांड है. So never stop dreaming, never stop thinking about like of your growth. Keep manifesting certain things. Limitless रखिए. See yourself open to receive in the most miraculous way the divine can
use anything and anyone. So I feel that strongly for you कि आप limitlessly beyond हो for universe. तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. You can achieve the whole entire world, I must say. बस आपको अपने पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. सो लेट्स पुल सम गाइडेंस कार्ड. वैसे तो काफ़ी गाइडेंस आई है ट्रस्ट की एंड थोड़ा सा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की एंड थोड़ा सा मेडिटेशन की, लेट गो करने की. सो लेट्स सी, आपके लिए 2 आए हैं. लेट मी पुल वन मोर. लेट्स सी क्या है. वी हैव एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स. आई टोल्ड यू आपके लाइफ पे सून कुछ नया आने वाला है. सून नॉट नया बट समथिंग इज एंटरिंग इन योर लाइफ. कुछ ग्रोथ, एक लेवलिंग अप आने वाली है. सो आपका ओल्ड खत्म हो रहा है और एक न्यू लेवल अप आपके अंदर आने वाला है. सो येस, the old must be released so that the new can enter. So definitely माँ काली is telling you that transformation, जो Queen of Swords में भी है, transformation आपकी लाइफ में होगी और होती आ रही होगी for sure. तो वही फेज से होगा आपका ग्रोथ भी. बट येस, डेफिनेटली सून यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस. Then true love for some of you, some kind of true love is entering in your life. Some kind of love, romance is in your ear. And if you connect with your lover, if you connect with your loved ones, your true love, your own heart chakra also, you will see. और हो सकता है soon आपकी लाइफ में when you start growing in your career, believing in yourself, आप एक पार्टनर भी अट्रैक्ट करो. 6 of Cups and Empress is also about a soulmate energy. तो आप वो भी अट्रैक्ट कर सकते हो. सकता है आफ्टर अ डिवोर्स, आफ्टर अ हार्श ब्रेकअप और अ ब्रेकअप सिचुएशन, यू विल अट्रैक्ट द राइटेस्ट वन ऑफ योर्स. So yes, and peace. It's very important with the 4 of Cups also. 4 of Swords also. Like, there is no need to worry as everything is working out beautifully. So, you know, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज. अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो, अगर आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, नो माई लव, ट्रू लव भी आपकी ज़िंदगी में है. सब कुछ एक नया आ रहा है. जस्ट बिलीव एंड ट्रस्ट इन प्रोसेस. ओके, सो पाइल नंबर 1, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड प्लीज़ टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है. एंड येस, आई एम सेंडिंग यू सो मच ऑफ लव. टेक केयर एंड सी यू. Pile number 2, if you chose this picture, then this is your reading. So you are already a very high vibrational souls. I feel that strongly. You are a very independent, like a, I feel, I don't know, for some of you I'm feeling like you people are very like a bossy kind of person. आप हो सकते हो like आप यहाँ पे मुझे थोड़े से business लीडर किंग्स की एनर्जी आ रही है. और अगर नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है. आई डोंट नो व्हाई बट यस, I don't know. आपके spirit guides are very like, they are very bold, king like a personality. I don't know. Yeah. So let's see. Your masculine personalities, I must say, lion kind of. Leo signs may be very dominant in Leo. So let's see. Pile number 2 के spirit guides, please tell me about their career. कुछ guidance जो भी आप उन्हें देना चाहते हो and everything. Will they get success in their career? Okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay. I just saw that card and whatever I am channeling, वही same card आया. Thank you so much, Spirit, for confirming everything. So let's see. Whew. Whoa. So we got 4 of Cups. Okay. 4 of Cups बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी आप जो भी करियर सोच रहे हो, यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपको अगर लग रहा है कि आई थिंक यही है सब कुछ बस इसमें, नो माई लव, आप सून कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले अपने करियर में. यू विल सी कि यूनिवर्स, जब आप अपने साथ थोड़ा सा बैठोगे, व्हेन यू स्टार्ट little bit of think about your career, about your life, about your profession, you will literally, universe is desperate currently, universe is desperate to tell you a new, a level up situation आपकी बताना चाह रहे हैं. वो बता रहे कि 3 cups तो आप जानते ही हो, like you know the 3 angles of camera, but now it's time to learn the 4th angle or a 5th angle of the camera as well. So दे आर टेलिंग यू द डेप्थ. मुझे लग रहा है आपकी सून आपके माइंडसेट, आपके प्रोस्पेक्टिव में एक ऐसा बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है दैट विल बी गेम चेंजर, दैट विल बी चेंज द एवरीथिंग. करंटली आप जो चीज़ कर रहे हो विच इज़ वेरी ग्रेट, आई फील दैट, बट विच इज़ ऑलरेडी वेरी ग्रेट. आप ऑलरेडी काफ़ी आगे अपनी जर्नी में आ चुके होगे, या यू मे बी अ स्टार्ट, आपने स्टार्ट भी की होगी. तो बट आई फील स्ट्रांगली यहाँ पे कि डिस्पाइट आपने स्टार्ट किया, अब आगे आए हो, बट यूनिवर्स इज़ वेरी ईगर टू टेल यू कि
something is new is entering in your life, something else is entering in your life. This new might be in your career also. किसी का करियर चेंज हो सकता है, किसी का you know उसी करियर को, उसी चीज़ को देखने का प्रोस्पेक्टिव शिफ्ट हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट लाइक biology in 11th class, but after you understanding that, you start understanding the depth of it, or you start liking it. आपने एक different perspectives से उसको देखने लग गए. So maybe you, it's just an example, okay? So एट दैट वे, और मे बी आप किसी अपने सीनियर को पसंद नहीं करते थे अपने जॉब में. सो आपको एक सडनली रियलाइजेशन होगी कि उसका प्रोस्पेक्टिव, वो अपने प्रोस्पेक्टिव से कैसे सोच रहा है, और वो भी अपनी तरफ से राइट ही है. सो दैट एक शिफ्ट आपके दिमाग में ज़रूर आने वाला है सून. दैट विल बी अ गेम चेंजर. बड़े बड़े जो एवोल्यूशन हुए हैं, बड़े बड़े जो चेंजेस आए ना, उसका एक छोटा सा थॉट ही था वो पहले, जो इतना बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट लेके आया है. सो दैट काइंड ऑफ thought I'm really channeling for you. You can see these are a very prominent cup is coming from heaven, from universe, from divine. And it's like a Newton, like a Newton energy, like Newton बैठे हुए and यहाँ पे कोई सेब होना चाहिए था, but I'm getting that Newton energy. I'm not saying like, is it Newton or is it that gravity inventor? I don't know. I just forgot. I'm so sorry. I'm so bad at my memory is so weak. But मेरा कहने का मतलब है कि मुझे वो दैट एवोल्यूशनरी एनर्जी फील हो रही है, जो गेम चेंज कर सकती है, सोसाइटी में परिवर्तन ला सकती है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग. आई एम सो सॉरी अगर मैंने गलत बोला है साइंटिस्ट का नाम. तो दैट कार्ड आई हैव मैंने पहले देखा था. सो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट लेगेसी. इट्स ऑल अबाउट द बिग एम्पायर्स. इट्स ऑल अबाउट लाइक you already, maybe you belong from a good family. आप एक legacy आपके पास already हो, आप अच्छे खानदान से belong करते हो. और अगर ऐसा नहीं है, so in this lifetime you will create legacies for your generations, upcoming generations also. So यहाँ पे again मुझे बहुत ज़्यादा like $1 million का एक आइडिया आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो यूनिवर्स आपकी तरफ डाल रहे हैं. यू नीड टू ट्रस्ट दैट, एंड आई फील दैट स्ट्रांगली. वो आपकी पूरी पुश्ते बदलने वाला है. एंड यू नीड टू ट्रस्ट कि वो आप ही के थ्रू हो रहा है, आप ही के पाइल नंबर 2 आप ही के थ्रू हो रहा है. एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज अबाउट मैनिफेस्टेशंस. लाइक यू ट्रस्ट योर मैनिफेस्टेशंस, यू ट्रस्ट द इन यूनिवर्स, यू कीप मेडिटेटिंग एंड यू गेट द मैसेज ऑफ योर्स. सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा भाग्य लिखा हुआ है, बट यू नीड टू कनेक्ट विद अ लिटिल हायर रिल्म. क्योंकि वो थॉट कब आ जाना है आपको भी नहीं पता होगा, बट आपको अपने अंदर अवेयरनेस रखनी होगी उस थॉट को आने के लिए. और आप सोचे होगे कि वो थॉट आएगा, मुझे कैसे पता होगा. दैट थॉट इज़ द वन थॉट दैट यूनिवर्स हमें सिंक्रोनिसिटीज़ देते कॉन्स्टेंटली. एंजल नंबर्स वो कीप कॉन्स्टेंटली आपको वही चीज़ हर जगह दिखने लग जाएगी. यूनिवर्स एक तरीके से थोड़ी ना बताते हैं, वो तो हमें मल्टीपल वे से बताते हैं. सो दैट वे यू विल नो दैट, बट उसके लिए आपको अपनी क्लियर और ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी. सो फर्स्ट कार्ड इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग with your own higher realm, connecting with your own self, and with also king of pentacles. I feel आप इस lifetime में बहुत like you will experience the huge amount of luxury, you will experience the huge amount of like richness. I am literally channeling the richness of yours. आप काफ़ी इस lifetime में grow करोगे. एंड ऑल्सो मे बी अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हेल्थी वेल्थी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो यू विल ऑल्सो डेफिनेटली ग्रो इन योर in your field also, in your legacy also. So yes, definitely for some of you आपका business हो सकता है, for some of you started a business or something related to like that which will help you. Strength, oh my god, okay, I feel कि आप the more you help people, जितना आप सेवा भाव में ध्यान दोगे ना, पाइल नंबर 2, उतना आप ज़्यादा तरक्की करोगे. यहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे कि परमात्मा उन्हीं बंदों को देता है जो आगे लोगों की मदद करने पे हेल्प करते हैं, राइट. सो आप अगर आगे दूसरों की मदद करोगे तो परमात्मा आपकी मदद करेगा. सो इट्स ऑल अबाउट लाइक अ नेटवर्किंग, इट्स ऑल अबाउट अ चेन. ओके, सो आप दूसरों के लिए सेवा भाव रखिए. अगेन यू कैन सी हियर द कनेक्शन विद डिवाइन. दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, दिस इज कमिंग फ्रॉम अबब. सो अगर आपको कहीं भी लाइक कनेक्शन बनाना है तो अपने भगवान के साथ बनाइए, अपने देवी देवता आप जिनको भी मानते हैं, डिस्पाइट एनी काइंड ऑफ लाइक रिलीजन, आप अपने परमात्मा को, डिवाइन को मनाइए एंड उनसे कनेक्शन बनाइए. अगेन दिस इज़ अ लियो एनर्जी एंड आई टोल्ड यू यू आर अ लायंस. एंड अगेन यहाँ पे उन लायंस को भी गाइडेंस देने के लिए एंजल्स हैं. सो डोंट वरी, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स, आपके साथ आपके पूर्वज, आपके
स्पिरिट गाइड्स सब हैं, आपकी हायर सेल्फ है आपके साथ. सो डोंट वरी इफ़ यू आर अपने अभी यंगर स्टेज पे भी हो, तो सून इन योर लाइफ, लाइक मे बी इन योर 35, I believe like after 30s or after like mid 20s or late 20s, I feel आपको वो एनर्जी फील होने लग जाएगी, which is so, I mean you feel that luxury. but I feel आपको कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा for sure. यहाँ पे यूनिवर्सल कनेक्शन है. दिस इज़ नॉट, ये थोड़ा पाइल नंबर 1 में भी आया था. इफ़ यू फील दैट connection with pile number 1 also, so you can avail the messages also from that pile. but I feel strongly कि जितना आप अपने पे आप समझोगे कि मैं लायन हूँ, again you can see here the Leo energy, you can see here the Leo energy. okay, so again this is a Leo card which really shows कि जब आप समझोगे कि मैं राजा हूँ, मैं लायन हूँ, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, देन यू विल एबल टू अट्रैक्ट यू. आपको उस फ्रीक्वेंसी पे टच करना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू बिकम दैट टू अचीव दैट. और वो बिकम इज नॉट अबाउट लाइक फिजिकली यू हैव टू बिकम दैट, मेंटली एनर्जेटिकली यू हैव टू बिकम दैट. आपको एक फुटप्रिंट अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा जो वो रियलिटी में बन पाए. And I swear, like, that will be a huge transformation. Even if you in your career you are thinking about to do some kind of बॉडी बिल्डिंग, फॉर सम ऑफ ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी सोच रहे हो, अगर आप फिटनेस रिलेटेड भी सोच रहे हो, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम. हीलिंग के बारे में सोच रहे हो, टैरो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और अ काइंड ऑफ अ बिजनेस विच इज़ रिलेटेड टू अ लिटिल बिट ऑफ नेचर, विच इज़ अ हीलिंग, अ मेडिसिन, फार्मेसी, और आई बिलीव समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग भी सोच रहे हो, तो दैट विल बी वेरी अप्रिशिएटेबल बाय यूनिवर्स. आई फील दैट. Oh my god, oh my god, pile number 2. Can you see that? Can you? Oh my god. Oh my god. Emperor, like King of Pentacles and Emperor. Oh my god. Like, who are you? You belongs from something else. और जैसे जैसे आप allegedly like आप जैसे जैसे अपनी एज को यू बिकम फाइन वाइन, लाइक जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका पैसा ग्रो करेगा. आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज. एंड यू कैन सी ऑल्सो ये इज़ अ यंग गाय जो थोड़ा यूनिवर्स के साथ भी मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं. देन दिस पर्सन बिकम्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक लेजिडली कॉन्फिडेंट. एंड और इतने कॉन्फिडेंट है कि वो खुद को लाइक लायन समझे और यूनिवर्स ने उन्हें एम्परर बना दिया. दैट काइंड ऑफ स्टोरी आई एम गेटिंग फॉर यू. एंड लेजिडली आई एम फीलिंग कि अभी अगर आप कोई छोटे से लाइक करियर के स्टेप के बारे में पूछ रहे थे, तो यूनिवर्स आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं. तो कह रहे कि अगर आप इसको पाने का भाग्य रख रहे हो, तो वो चीज़ तो ऑटोमेटिकली अचीव होनी है. लाइक 12th स्टेप को अचीव करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेप्स को तो अचीव करना इंपॉर्टेंट है ना. सो वही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं. अगेन आई एम फीलिंग कि द मोर यू कनेक्ट विद योर रूट्स, एंसेस्टर्स, फैमिली, you will see कि you will grow a lot. Never leave your roots. Never ever pile number 2 leave your roots. आप जितना अपने roots के साथ कनेक्ट रहेंगे, आप जितना लाइक आप संक्रांत भी कर सकते हो जो आई थिंक 15-14 को आती है एवरी मंथ. आप अपने एंसेस्टर्स के लिए श्राद्ध कर सकते हो, आप अपने एंसेस्टर्स के लिए खीर बना सकते हो, आप उनको ग्रेटफुलनेस किसी भी स्वरूप में, लाइक बाय फीडिंग बर्ड्स, एनिमल्स, एनीथिंग, लाइक आपका जो भी आपके रिलीजन में आपका जो भी वे है टू एक्सप्रेस कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स, आप वो कर सकते हो. यू विल सी द मैजिक पाइल नंबर 2. लिटरली दिस इज अ वेरी, I feel that magical energy in me. And legitimately, like King of Pentacles and the Emperor shows like with time you will, you become the brand, you become the face value of everything. I feel that. And Hermit, this all works when you come, ये जब आप inner work करोगे, ये तभी happen होगा जब आप inner work करोगे. Currently अगर आपको कुछ करना है, pile number 2, प्लीज़ अपना inner work करना start कीजिए. You will see the magic which universe is trying to convey here. और ये काफ़ी मतलब लाइक दिस इज़ बियॉन्ड मैजिक. एंड यू आर अ ओल्ड सोल, यू ऑलरेडी पाइल नंबर 2, यू आर अ ओल्ड सोल, और आप पहले ही एक्सपीरियंस से कर चुके अपने किसी जन्म में. लाइक यू ऑलरेडी आप ऑलरेडी किंग हो गए, आप ऑलरेडी क्वींस हो गए, आप ऑलरेडी लाइक राजा रानी, आई डोंट नो व्हाट टू से, लाइक एम्परर एम्प्रेसेस होंगे. सो
आप जब उस चीज़ को फील करना स्टार्ट करोगे आप एक क्वांटम जंप मार दोगे, या कह सकते हैं हम लोग वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे वो वाली एनर्जी को. सो सबकॉन्शियसली यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस दैट. तो आपको बस उसको ट्रिगर करने की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. अवेकन करने की ज़रूरत है, आपको अपनी शक्तियों में आने की ज़रूरत है. लाइक इन ब्रह्मास्त्र शिवा अपनी शक्तियों में आया था, ऐसे आपको भी अपनी शक्तियों में आने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ नॉट अबाउट मनी, बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट रेपुटेशन दैट यू विल गेट थ्रू योर करियर. यू बिकम द मास्टर ऑफ योर करियर. आपके जैसे कोई क्रिएशन बना नहीं सकता. यू आर मेंट फॉर बिजनेस, यू आर मेंट फॉर क्रिएटिंग लेगेसीज. आपका नाम होगा इन इंडस्ट्रियलिस्ट और लाइक बड़े बड़े कंपनीज में. आई फील आपका नाम होगा, या नहीं भी होगा तो यू लिटरली आप एक ऐसा फाउंडेशन ज़रूर सेट करोगे. पाइल नंबर 2 जो फ्यूचर में जिसका नाम होगा. मे बी यू बॉर्न इन योर ब्लड लाइन, और आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो. बट आई फील यहाँ पे एक या तो वो बन रही है, या वो बनेगी, या वो बनने की बुनियाद बनाएगी. सो यस, लेट्स सी सम मोर करियर, व्हाट्स हैपनिंग करंटली. क्या आप इंफॉर्मेशन गाइडेंस देना चाहते हो उन्हें पाइल नंबर 2 को. एंड आई स्वेयर पाइल नंबर 2, नेवर एवर एवर अपनी लाइफ में कभी ईगो मत लाना. एक बहुत बड़ी गाइडेंस है ये, बहुत बड़ी गाइडेंस की कभी भी ईगो मत लाना. जिस दिन आप ईगो लाओगे उस दिन आपका डाउनफॉल होगा. बट आई फील यू आर अ वेरी स्पिरिचुअलिस्ट सोल, यू आर अ वेरी वाइज सोल, यू आर अ वेरी कनेक्टेड सोल विद योर रूट्स. तो आपको कभी नहीं आएगी वो चीज़. सो चेंज करंटली आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है जहाँ पे यू आर लिटरली, एज आई मैंशनड यू, पहला कार्ड इज ऑल अबाउट चेंज. तो करंटली आप जो भी सोच रहे हो उसमें एक शिफ्ट आने वाला है. दैट शिफ्ट आपको वो इंट्यूशन आ रही होगी करंटली, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड सोल विद यूनिवर्स. सो आई फील दैट स्ट्रांगली कि आपको एक कनेक्शन आ रहा होगा. आपकी वो गट पावर जो कह रही है ना, वो हल्का सा आपका जो इंटरनल मन कह रहा है कि यार आई थिंक आई शुड ड्रॉप दिस, आई शुड स्टार्ट दिस, आई शुड मुझे मेरे इस बार स्कोर अच्छा हो जाएगा. दैट चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ, बिकॉज नाउ यू आर नॉट आप अपनी ईगो, अपने वो मायावी सेंसेस को नहीं देख रहे हो. आप अपनी वो इनर कॉन्शियसनेस जो आपको मैसेज देना चाहता है, आप उसे पिक कर रहे हो करंटली, विच इज़ ब्यूटिफुल. देन फ्लो इज़ वेरी ब्यूटिफुल. अभी आप जितना फ्लो के साथ चलो, आपको आपकी जो इंट्यूशन कह रही है, जो आपको फील हो रहा है, आप उस फ्लो के साथ चलो, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा अभी एक फ्लो में. अगेन दीज ऑल कार्ड्स आर इन फ्लो. कैन यू सी दैट दीज ऑल कार्ड्स इन योर फ्लो. सो आपको उस चीज़ से जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपने कामनेस और अपनी वो पीसफुल स्पिरिट में ही रहना है, और यूनिवर्स से अपने सवालों के जवाब मांगने हैं. दैट विल रियली हेल्प यू. डेफिनेटली फ्लो में रहिए. लास्ट कार्ड वी हैव राइट एक्शंस, बिकॉज यूनिवर्स विल टेल यू वेयर यू नीड वेयर एंड और कैसे आपको कब और कैसे आपको राइट एक्शंस लेने हैं. आपको यूनिवर्स बताएंगे. एंड डेफिनेटली लाइक हाउ ब्यूटिफुली आपके पाइल नंबर 1 से ज़्यादा फ्लो में कार्ड्स आए. लाइक आई टोल्ड यू, लाइक दिस इज अ स्टेप प्रोसीजर. एंड अगेन चेंज, फ्लो, टेक एक्शन. व्हेन यू चेंज और अपने आप को एक्सेप्ट करोगे फ्लो में, तो आप एक्शन ले पाओगे जो यूनिवर्स देना चाहते हैं, फॉर श्योर. लेट्स सी सम यूनिवर्सल चिट्स फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन. ओ माय गॉड, लेट मी redo that because it's on here. Okay, fine. 2. Okay, let me pull this one also. This. Okay. So first card we have go outside. Okay, this is for some of you. आपको घर के अंदर नहीं रहना जितना. Again, this card is about spending time in nature, spending time in universe. These 2 cards, जब आपको आपका hermit mode, इंटरनल कनेक्शन आप तब बना पाओगे जब आप नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होगे. सो आप पार्क में जा सकते हो, आप मेडिटेशन सेंटर्स जा सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो. यू कैन डू लाइक कनेक्ट विद समथिंग विच आपके जो इनर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं. सो गो आउटसाइड. वो आपको आइडियाज़ देंगे, वो आपको इंस्पिरेशन देंगे, वो आपको साइंस देंगे जो यूनिवर्स देना चाहते हैं. घर पे नहीं मिलेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्योरिफिकेशन. मैंने बोला आपको वो ईगो, वो एक दैट मटीरियलिस्टिक जो ईगो चार्म होती है वो नहीं लेके आनी. दैट विल लिटरली वो आपको ऐसे डाउन करेगा. यू डेफिनेटली हैव अ सन इन सैटर्न प्लेसमेंट जहाँ पे सन ग्रो करेंगे. बट जब आप में ईगो, आप पे वो एक इनजस्टिस एटीट्यूड आएगा बिकॉज ऑफ योर ईगो, आपके वो सैटर्न आपको ड्रैग भी कर सकते हैं. तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर सम ऑफ यू. ओके, नेक्स्ट वी हैव बाउंड्रीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट बाउंड्रीज. तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी है बिकॉज यू आर क्रिएटिंग लेगेसी, यू आर क्रिएटिंग एम्पायर. सो बाउंड्रीज तो उसके लिए होनी ही चाहिए. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इनर वर्ल्ड में और आउटर वर्ल्ड में एक बाउंड्री बनाइए. लाइक
आपका आउटर वर्ल्ड नेवर लाइक आपका आउटर वर्ल्ड शुड नेवर लाइक इफेक्ट योर इनर वर्ल्ड. आप बाहर जो भी हो रहा हो, इट्स टोटली फाइन, वो अप्स एंड डाउन्स के साथ चलेगा, टेम्पररी सिचुएशंस में चलेगा, बट आपका इनर शुड बी स्थिर, आपका वो पीसफुल स्टेट में होना चाहिए. Where is this card? Like वो calmness और peaceful state में आप होने चाहिए वो हमेशा. और emperor, like emperor is a card of like king of cups, king of pentacles, king of wands and king of swords. तीनों का राजा है वो. So उसमें वो calmness है, वो उसमें शांति है, वो उसमें पेशेंस है टू अचीव एवरीथिंग. वो विद टाइम आएगी आपको, बस आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना के रखना है. Next we have High Priestess. Okay, how vibrational these cards are, like these three. And also Hermit shows this energy. You are divinely knowledge that you can help other through your spiritual teaching. I told you for some of you आप spiritually कुछ करना चाह सकते हो, like spiritual teacher बनना चाहते हो या counselor, consultant, like start your business in those areas also. And अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं, आपके अंदर वो एनर्जी है, आप कुछ भी करोगे. पाइल नंबर 1 आपके अंदर वो ऑरा, पाइल नंबर 2 आपके वो ऑरा में चीज़ है. अगर आप एक फेस सोप भी बना रहे हो, सो डेफिनेटली वो फेस सोप पे भी वो एनर्जी होगी जो उनकी स्किन को हील करेगी. सो आपके वो ऑरा में, आपकी वो नेकी, आपके वो एनर्जी में, वो ऑरा में वो चीज़ है जो आपको हील कर सकती है. सो यस, पाइल नंबर 2, नेवर 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 वो मटीरियलिस्टिक को तो कभी मत लाना. बस वो एक बाउंड्री सेट करके रखना जहाँ पे आपका इनर कॉन्शियसनेस, आपका इनर वर्ल्ड कभी भी आउटर वर्ल्ड के साथ इफेक्ट ना करे, बल्कि इनर वर्ल्ड गाइड करे आउटर वर्ल्ड को, ना कि वो इफेक्ट करे आउटर वर्ल्ड. उल्टा ऐसे आत्माएं बीच में, हमारे हमारे सेंटर में आत्मा, तो वो रेडिएट होनी चाहिए, ना कि बाहर की रेडिएशन अंदर आनी चाहिए, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So pile number 2, I hope you like this reading. I hope you get your information, guidance, and if you like my content, please subscribe to my channel and comment section में please बताना आपको कौन से topic पे next video चाहिए है. You can give suggestions as well. And yes, I will meet you in another one. Thank you so much. Pile number 3, if you chose this picture, then this is your reading. Let's quickly dive into your reading. Okay. लेट्स सी आपके करियर के रिलेटेड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या डेस्टिनी है आपके करियर में, एंड अभी करंटली यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 काफ़ी बहुत अच्छी हुई है. लेट्स सी योर रीडिंग ऑल्सो. पाइल नंबर 3, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल माय ब्यूटीफुल सोल्स क्या बताना चाहते हैं. थैंक यू. ओके, वी गॉट 3 कार्ड्स. Let's see. You're a very stable person. You are not so hapda dafdi wale person. You are a very stable, very sensible, mature individuals जो अपना काम को बहुत peacefully, sensibly, very clearly, very obediently and action orientedly करते हो. I don't know why I'm getting that. You're a very sensible person. I'm not saying बाकी piles में नहीं थे, but you have that calm energy. Yes. Okay. Oh my god. I told you I have a calm energy and you have got the King of Swords. Okay. King of Swords really shows you peoples are like सब में ही kings आए हैं एक. Oh my god. Okay. King of Swords really shows me आप इस lifetime में you have that different perspective. You have a very, I would say very clear mindset कि आपको अपने करियर में क्या चाहिए, क्या करना है. You have that vision. You have that perspective. You know कि बहुत सारे लोग वो चीज़ कर रहे हैं. like अभी इस टाइम दुनिया में इतनी सारी आत्माएं हैं जो शरीर में हैं, और इतनी ज़्यादा आत्माएं नीचे आ रखी है जो बिना शरीर के भी नीचे घूम रही है, which we can sense sometimes, right? तो डेफिनेटली करियर की ऑप्शंस कम है एंड लोग ज़्यादा हैं. सो हम सब कुछ ना कुछ करें. एंड वी कैन सी फॉर एग्जांपल इन कंटेंट क्रिएशन देखें तो उसमें पीपल आर कॉन्स्टेंटली कॉपिंग ईच अदर्स ट्रेंड इज ऑल अबाउट लाइक कॉपिंग सर्टन थिंग्स, और हम लोग उसी चीज़ को लाइक वो करें. आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग और राइट, बट इट्स अ डेफिनेशन ऑफ इट, राइट. सो आई एम टेलिंग यू कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपना दिमाग में रखते हो कि येस आई नो एवरीबडी इज डूइंग दैट, बट मेरा एक प्रोस्पेक्टिव है. बट यू कैन सी ऑल्सो कि कॉन्टेंट क्रिएशन में भी सम क्रिएटर्स डूइंग द सेम ट्रेंड, फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, बट उसमें एक बहुत ही डिफरेंट क्रिएटिविटी ले आते हैं, बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट ले आते हैं. दे हैव अ डिफरेंट विजन, दे हैव अ डिफरेंट एस्थेटिक, दे हैव अ डिफरेंट डायमेंशन जिसे वो नीचे ले आते हैं. फॉर सम ऑफ यू लाइक लोग विंटेज ले आते हैं, रेट्रो ले आते हैं, फेरी टेल्स, कॉटेज कोर, वट नॉट. लाइक कुछ आजकल तो इतना ब्यूटिफुल कॉन्टेंट बन रहा है विच इज़ अनएक्सप्लेनेबल. सो वही मैं फील कर पा रही हूँ कि यू हैव दैट इंटरनल लाइक योर इनर
energy is really guiding you. For some of you people are artistic also, creative also, and even you have also a very good relationships, or you are destined to be have a good relationship in this lifetime, जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है. एंड आई फील स्ट्रांगली कि आप जब अपने करियर में ग्रो करोगे ना, इन मिडल ऑफ दैट यू विल फाइंड द योर ट्रूएस्ट पार्टनर, और मे बी इफ़ यू ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, यू विल फाइंड अ डीपर कनेक्शन विद योर पार्टनर एट दैट टाइम. एंड आई फील आप वो चीज़ बहुत डीपली कर सकते हो. एंड वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप वो ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हो चीज़ों में, आप वो एवोल्यूशन ले आते हो चीज़ों में, जो विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. आपका प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन इज़ वाओ to the things, and you have a very clear mindset, you have a very clear vision, you have a very successful mindset. आप बहुत न्यू आइडियाज ले आते हो, बहुत आप पोटेंशियल रखते हो, बहुत न्यू. यू आर अ किंग. लाइक फर्स्ट कार्ड इज ऑल अबाउट, लाइक मैंने पाइल नंबर 1 में बोला था, फर्स्ट कार्ड इज पूरी रीडिंग की एनर्जी होता है. सो इट्स ऑल अबाउट लाइक हाउ ब्यूटिफुल यू आर. एंड अभी आप अगर सोच रहे हो कि वेदर आई गॉट सम काइंड ऑफ, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन योर करियर लाइक प्रमोशन और एग्जाम और समथिंग लाइक दैट, यू आर डेफिनेटली गेटिंग दैट. यू आर डेफिनेटली, और आप अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, फर्स्ट शॉट दे रहे हो, इट इज़ इन योर डेस्टिनी. यू विल डेफिनेटली अचीव. इट्स अचीवेबल, येस, बट आपने मेहनत काफ़ी की है. यू लिटरली वर्क अलॉट. एंड अगर आपको थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है, नो, यू विल डेफिनेटली यूनिवर्स इज़ विद यू. वर्ल्ड कार्ड, वाओ. लाइक फॉर सम ऑफ यू, आप इतना, आपका करियर, आपका वर्क, आपका आर्ट, आपकी एवरीथिंग इंटरनेशनल, लाइक नॉट ओनली हमारा एक छोटा कम्युनिटी, बट वर्ल्ड वाइड को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता है, और लोगों को हील करने की क्षमता रखता है. लाइक it's beyond like wow. And I feel only आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स इतने ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देते हैं कि सिर्फ आपका बिलीफ सिस्टम, आपके आइडियाज़ ही आपको मार सकते हैं, आपको आप ही नष्ट कर सकते हो, बट नो बडी कैन, कोई भी आपको नष्ट नहीं कर सकता. एंड आई फील स्ट्रांगली कि because of your attitude, because of your calmness, because of your unique attitude, you definitely get so much of center of attention, or because of your good looks, the way you present, execution. I told you आपका execution बहुत अच्छा है. अगर आपका work में execution अच्छा है, तो definitely आपका like आपकी खुद में भी execution अच्छा ही होगा. या by nature, naturally you get such a beautiful features जो which attracts like very good amount of crowd. लाइक और अगर आप प्रेजेंटेबल हो, लाइक, तो आप डेफिनेटली लोग, पीपल फील इंटरेस्टेड इन योर वर्क ऑल्सो. आई कैन फील. ओके, दिस इज नो कार्ड, यू कैन सी. ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. ओ माई गॉड, आई टोल्ड यू दैट कि आप इन द टाइम मिडल ऑफ समथिंग यू विल डेफिनेटली मीट योर पार्टनर फॉर सम ऑफ यू. एंड हो सकता है कि in your career you definitely have one person has soul, like this is a soul, this is a heart, and this is a mind. How beautiful these cards are. I know she's looking somewhere else because her perspective towards seeing things are different, but I feel you are a very stable individual. I don't know why ये बहुत ज़्यादा like relationship side जा रही है reading, but definitely. और आप हो सकता है अपने पार्टनर को abroad में, हो सकता है अपने पार्टनर को फॉरेन में मिलो. एंड आई फील दैट स्ट्रांगली, लाइक नॉट फॉरेन, बट like not in your homeland, not in your place where you are living right now, वहाँ पे मिलो. while traveling मिलो, या while doing some kind of work related काम कर रहे हो तब मिलो. and I feel strongly आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके करियर में ग्रोथ को. और करंटली अगर आप करंट सिचुएशन में पूछ रहे हो, तो आई फील स्ट्रांगली कि you have that potential when you create family, when you make family, when you become a married person, family man, family women. So you will definitely attract so much of abundance. Your children's, your wife, husband is a very good luck, like that person is very lucky for your destiny. And again, I feel not only that, this is like a cherry on the top, but you are also a king. Don't forget that you are also a king or queen. So I feel strongly कि आप दोनों साथ में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रखते हो. एंड डेफिनेटली आपके माइंडसेट जो एक ऐसा है जो बहुत
बहुत सारे एवोल्यूशन से निकलेगा। आपका जो करियर है वो भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन से निकलेगा, बिकॉज समटाइम्स यू थिंक यू आर गुड एट दिस, समटाइम्स यू थिंक यू आर गुड एट दैट, एंड आफ्टर एनालिसिस यू थिंक कि मैं बहुत सारी चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं मल्टीपल चीज़ों में अच्छा हूँ, और आप मल्टीपल चीज़ों में अच्छे हो। विद डेथ कार्ड आई फील ऑल्सो कि आप बहुत सारे अपने लाइफ में करियर को चेंज करोगे, शिफ्ट लाओगे, ड्रॉप करोगे। हो सकता है जो आपने 12th पे 11th पे स्ट्रीम ली हो उसमें आपने कॉलेज ही ना लिया हो, या अगर आपने कॉलेज डिग्री जिस चीज़ में लिया उसमें आपने जॉब ही आगे ना की हो। सो देयर इज़ अ स्टॉपेजेस आई एम फीलिंग फॉर यू ऑल्सो। एंड अगेन इट्स अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आपके आएंगे, एंड दिस इज़ अ वेरी लाइक classy pile. I don't know why, but I feel your career will be very classy. For some of you, Air India, I'm channeling, I don't know why, airlines. Then for some of you, you maybe work in a crèche, you work in a, if you are a housewife, you do some kind of daycare, caretaking. Some of you, you do some kind of modeling, इंटरनेशनल कोई अप्स एंड डाउन्स वाला काम, टीचिंग भी कर सकते हो। अगेन यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें दिख रही है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लिकेट, बट आई फील स्ट्रांगली कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि आप वो काम करोगे जो आपका मन को भाएगा। आप वो करियर को एक ना एक टाइम पे छोड़ दोगे जो आपको लग रहा होगा कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये होगा या नहीं करेगा, या ये लोग कर रहे हैं तो मैं करूँ, नहीं। आप वो करोगे जो आपका मन करेगा, वेदर उसके बाद नहीं फ़र्क पड़ता कि वो लोग कर रहे हैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू आर पैशनेट फॉर अगेन कंटेंट क्रिएशन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ता कि लोग कितने लोग हैं उस चीज़ में, बिकॉज यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, you need to understand that. Oh my god, this is a very like very confident pile, because this king is very confident. They know everything, they have a very strong belief system कि मैं कर सकता हूँ। They have a strong trust. All the king and queen have this so much of trust, और इनका तो like by default ही होता है, like past life से लेके आए होते हैं। You do manifestation, I swear manifestation करना शुरू कीजिए, like start manifesting, start attracting. What a manifestation you can do. Again, these are two cards of manifestation. You will see, and in this lifetime you will definitely experience so much of endings and beginnings in your life कि आप देखोगे कि बहुत सारी endings और beginnings हो रही है। और हो सकता है currently भी अगर आप सोच रहे हो कोई चीज़ को छोड़ने का, कोई चीज़ को एंड करने का, या किसी चीज़ को स्टार्ट करने का, परफेक्ट टाइम है आप करो उस चीज़ को, बिकॉज उसकी ना जो, और अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट की और वो बहुत टाइम से लाइक क्या कह सकते हैं, लाइक ग्रो नहीं करी है या वर्क नहीं करी, सून इट विल बी वर्क, वो जल्दी वर्क करने वाली है, लाइक इन वीक्स, इस वीक में भी आपको उसके ग्लिम्स आ सकते हैं। वो चीज़ अब ग्रो करने वाली है, सो डोंट लूज होप। अगर आपके वो दिल को भाई ये चीज़, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको करेगी। यू आर मेंट टू क्रिएट बिग थिंग्स, यू क्रिएट आर्ट। यहाँ पे आर्टिस्टिक पाइल, यहाँ पे लाइक फ्री स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल पाइल्स है। कॉलेज लोग भी हो सकते हो आप, I don't know why, but I'm getting that. If you are like working in corporate sector, if you are a student doing some kind of like education field के related education ले रहे हो, तो I feel आपकी like अगर आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आपकी कंसंट्रेशन, आपकी फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है soon in your career. I feel that strongly. And if you are thinking about to move abroad or studies, doing some kind of study visa, ग्रेट, परफेक्ट करो। आपका वीज़ा क्या अगर आप सोचो वो भी चीज़ बहुत अच्छे से आएगी। ये फॉरेन पाइल है बहुत ज़्यादा, लाइक सैजिटेरियस। देन आई मीन यू हैव अ गुड विजडम, यू हैव अ विजडम जो आई फील स्ट्रांगली कि जो लोगों को गाइड कर सकती है, जो लोगों की, यहाँ पे लॉर्ड शिवा की हल्की एनर्जी है, लॉर्ड शिव पार्वती की थोड़ी एनर्जी मुझे फील हो रही है फॉर सम ऑफ यू। ओके, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। एंड again I feel strongly ki the more you can use clear quartz in your daily life also, water clear quartz, that will really help you. Then again I feel start writing in lined notebooks, yellow color की थोड़ी होती है ना lined notebooks, that really helps you to manifest your things. Journaling really helps you also. पेज ऑफ पेंटिकल्स रियली शोज मी कि आप अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, आपको थोड़ा आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपके पास इनफ नॉलेज, आपके पास इनफ चीज़ें हैं, यू हैव इनफ विजडम टू डू सच थिंग्स, सो डोंट वरी, डोंट लूज होप ऑनेस्टली। पाइल नंबर 3, इंफॉर्मेशन। ओके, लेट्स टेक 3 कार्ड्स। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स आपको, यू कैन सी एंजल्स और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ बियॉन्ड। और अगर आप
कॉन्स्टेंटली करियर में अपने स्ट्रगल कर रहे हो, तो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग डेफिनेटली. डेथ कार्ड आया आपके लिए एंड वर्ल्ड आया. इट्स ऑल अबाउट एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, राइट? सो या, groundedness. The more you be grounded, the more you connect with your roots, or not connect with your roots but your inner consciousness. Again I told you, ये इनके कान पे बैठे हुए हैं. So जितना आप शांति को महसूस करोगे, जितना आप पीस को एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे, आपका ग्राउंडेडनेस वही होगा. I feel you are a air sign persons, water sign, air sign peoples. For some of you, Sagittarius, Scorpios, then okay, I feel for some of you a little bit of earth sign also, like Virgo and Taurus for some of you. But I feel strongly with the groundedness कि जितना आप शांति को महसूस करोगे, जितना आप शांत स्वभाव से काम करोगे, calmness से काम करोगे, जितना आप like सोचने से ज़्यादा यूनिवर्स की गाइडेंस को सुनने पे बिलीव करोगे, because they are ready to tell you every single thing. Multiple spirit guides are there to tell you. So उतना आपको समझ आएगा. So be religiously उन्हें सुनिए. Many of the most evolved beings on the earth are regular folk living with joy, dignity and courage. So definitely आपको खुश रहना होगा. आप जितना खुश रहेंगे, there's a Mercury energy also, Mercurian energy also, which shows like कि जितना आप खुश रहेंगे उतना आपका इनर चाइल्ड एक्सप्लोर्ड रहेगा, और जितना आपका इनर चाइल्ड खुश रहेगा, बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो, राइट, विच शी इज़ अ वेरी कनेक्टेड विद हर इनर चाइल्ड. इनर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है वो, अपने दैट प्योरेस्ट कोर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है. शी इज़ प्योर like this. I swear, start wearing clear cords, your life will be changed, because both connect that energy. दो किंग एंड क्वींस की एनर्जी कंटेन कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ. सो वो एनर्जी, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप अपनी कनेक्शन में रहेंगे, उतना आपको ग्रोथ मिलेगी. इनवाइट हेल्प, जब आपको हेल्प की ज़रूरत है, पाइल नंबर 2. और आई फील यूनिवर्स विल सेंड यू योर पार्टनर एज अ हेल्पर. आई विल फील, और आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैं, लोग हैं जो हेल्प करेंगे. यूनिवर्स हेल्प करेंगे, नॉट इवन लोग बट ऑल्सो यूनिवर्स. आई टोल्ड यू, आपके आसपास इतने सारे स्पिरिट गाइड्स हैं, इतने सारे, विच इज़ अनएक्सप्लेनेबल टू से. बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है. यू हैव टू जस्ट कनेक्ट विद देम. और वो कनेक्शन मेडिटेशन में, कनेक्शन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर शांति में होगा. जब आप बाहर के लाइक हसल बसल से निकलोगे, जब आप बाहर के क्राउड से निकलोगे, बाहर की आवाज़ों से निकलोगे, तब आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं. सो स्टार्ट अगेन. यू कैन सी, मुझे पता नहीं क्यों किंग ऑफ कप स्वाड्स में इतनी शांति फील होती है. दिस कार्ड इज सो पीसफुल, विच इज़ अनएक्सप्लेनेबल, विच इज़ वेरी पीसफुल. And universe is really eagerly ready to tell you. Love. Okay, I told you this. ये एक लौता पाइल है जिसमें कि करियर में लव की एनर्जी आई है. एंड डेफिनेटली लव इज समथिंग विद द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो, कि लव एंड पीसफुलनेस इज समथिंग विच रियली हेल्प्स यू टू कनेक्ट. थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा पे कनेक्ट करिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी. Again, throat chakra, heart chakra, and for some of you, root chakra, because base, you need to create a base. अगर आप अभी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप एग्जाम कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिए. दैट विल रियली हेल्प यू. लव इज समथिंग जो आपकी अभी भी आपको हेल्प कर रहा है, आपके भाग्य का एक भाग्य उदय का. अगर इफ़ यू आर अ मेल, सो दैट हम लोग कहते नहीं है कि घर की लक्ष्मी है, दैट घर का ग्रोथ करने वाली लक्ष्मी है. सो डेफिनेटली वो आ रहे हैं, और दैट पर्सन इज ऑल्सो लाइक अ लॉर्ड कृष्णा और लाइक अ लक्ष्मी, लाइक दैट फेमिनिन एनर्जी ऑफ देम इज लाइक लक्ष्मी जो आपके घर में आ रहे. सो यू बोथ कनेक्ट. आप दोनों का नक्षत्र इतने प्यारे होंगे जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे साथ में व्हेन यू कम टुगेदर. सो डेफिनेटली लव इज समथिंग विच वर्क्स सो ग्रेट इन योर करियर. और अगर आपको अभी भी आप कोई रिलेशनशिप में हो, लाइक आई एम शूटिंग इट वैलेंटाइंस डे के नेक्स्ट डे, सो अगर इफ़ यू आर into some kind of relationship, spend time with your lover, spend time with your loved ones lover. You will see the change, you will see the. अगर आप एक मैरिड मैन हो और मैरिड वेमेन हो, प्लीज़ गो ऑन अ डेट, स्वीट डेट कीजिए. यू विल सी द मैजिक. फेथ, ओ माई गॉड, फेथ. यूनिवर्स पे फेथ रखिए. वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, यूनिवर्स पे फेथ रखिए. यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं. अगेन दिस कार्ड इज सो स्वीट, बिकॉज कितना प्यारा लिखा है. मराकुलसली, अमेजिंगली, एवरीथिंग आई नीड ऑलवेज कम्स. लव इज opening me to receive beyond anything I imagine. It's all talking about the love which I told you about your life partner, and also about your heart chakra.
and the love you are sharing with yourself. और आप जितना आप अपने आप से प्यार करोगे वही आपके लवर के प्यार को भी अट्रैक्ट करेगा. So yes, and yes, you need to let go the old dramatic side. ज़रूरी नहीं है वही चीज़ आगे भी होनी है. अब यूनिवर्स पे फेथ रखोगे वो चीज़ नहीं होगी आगे, और वो नहीं होगी फॉर श्योर आगे. फाइल नंबर 3. सो डोंट वरी, लेट गो. यूनिवर्स कब अपना स्टीयरिंग व्हील बदल दे पता नहीं होता, और वो तब बदलेंगे जब आप यूनिवर्स पे फेथ रखोगे और जब आप स्ट्रॉन्ग होगे. ओके, सो या फाइल नंबर 3 के लिए कुछ लास्ट चिट्स फ्रॉम मदर यूनिवर्स. प्लीज टेल देम सम. ओके, वी हैव इनफ चिट्स. Pile number 3. Okay, we have blossoming. You are just started. For some of you, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो. For some of you, हो सकता है आप 12th में हो, आप कॉलेज स्टार्ट करने वाले हो सकता है आप कोई जॉब को कर रहे हो, या हो सकता है आप अपने ही नॉर्मल करियर को जो बहुत टाइम से डाउनफॉल या अप्स एंड डाउन्स में चल रहा है उसको एक नए प्रोस्पेक्टिव से स्टार्ट करने वाले हो. सो येस, यू आर अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. यू कैन डू एनीथिंग. So you are just started, so you have have patience with yourself and the process, and do not give up. So don't give up. Okay, next we have, okay, forced intention. Keep your unwavering thoughts, feelings and action focused in your target, and you will make योर मार्क. डेफिनेटली आई टोल्ड यू, आपका मन और आपका दिमाग साथ में है इस टाइम, और आप करियर में आपके भाग्य में वो दोनों चीज़ें आपके साथ है. यू आर अ वर्कaholic पर्सन. यू आर नॉट अ वर्कaholic पर्सन, बट यू आर अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन. आपका एक दिमाग ऐसा और एनर्जी क्रिएट करता है जो बहुत ज़्यादा करियर में ग्रोथ ला सकती है. सो येस, फर्टिलिटी फॉर सम ऑफ यू, डेफिनेटली चिल्ड्रन. आई टोल्ड यू, इफ़ यू आर अ फैमिली मैन, डेफिनेटली आप मैरिज के बाद बहुत ग्रो करने वाले हो. इट्स परफेक्ट टाइम for you to start new project, access new idea, give new birth to conditions also. Can you see these two cards just speak same thing? Last we have go outside. Okay, and again it's all about like this. If you are thinking, अगर आप बहुत टाइम से फेड अप हो गए हो, बहुत टाइम से कोई चीज़ नहीं आपको स्टेबल करी, तो लाइक क्रिएटिविटी तब आती है. क्रिएटिविटी बाय प्रोडक्ट है जॉय की. व्हेन यू फील जॉयस, व्हेन यू फील दैट मर्करी एनर्जी में, दैट क्यूरियोसिटी, दैट बेबी एनर्जी में इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होगे, तभी वो क्रिएटिविटी आएगी. एंड उसके लिए आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, नेचर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा. अपने वो लाइक दुनिया इतनी बुरी नहीं है, बस दुनिया का अपना वाला चीज़ को ढूंढना पड़ता है बस दुनिया में. दुनिया अभी लाइक जस्ट लाइक अ सरोजनी नगर जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें अपना पीस ढूंढना पड़ता है. सो दैट्स ऑल. एंड अभी अगर आपको वेकेशन की, अगर आपको बाहर जाने की अगर फील हो रहा है, सो टेक अ ब्रेक एंड गो आउटसाइड अ बिट. आप उसको नया स्टार्ट या रीस्टार्ट करने से पहले भी आप थोड़ा सा ब्रेक और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, विच विल रियली हेल्प यू टू बूस्ट इन योर लाइफ. एंड डेफिनेटली आई फील टारगेट अपनी इंटेंशंस के साथ कीजिए, बिकॉज आपके पास दिल और दिमाग दोनों है. आपका दिल और दिमाग आपके करियर में दोनों है. डोंट वरी. और अगर आपको अभी पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, तो प्लीज़ कनेक्ट विद यूनिवर्स, प्लीज़ कनेक्ट विद नेचर. एंड आई फील दैट स्ट्रांगली. अपने आप से पूछिए. अगेन यू नीड टू टेक वेकेशन, यू नीड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, आउटर कियोस, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि क्या हो रहा है. फाइल नंबर 3. So yes, pile number 3. I hope you like this reading. I hope you get your messages. And if you like my content, please subscribe to my channel. अगर आपको कोई भी टॉपिक है आपके दिमाग में, you can give me suggestion in comment section as well. And yes, I will see you in my another reading. Take care.